Sorry. You keep the videos on, all of you. Check the homework sum. Sorry. Sorry. Nina General Stores, right? Check. See the homework sums. Check the solutions fatafat. First one. Sold goods of rupees 50,000. Turn on the videos. First of all of you, come on. Video should be on. Off videos will be out. Network issue. Can I connect in 5 minutes? Yeah. बाकी लोग का वीडियोस ऑन चाहिए. विदुषी, कीर्तना, पलक, स्मिथ, फोरम, तान्या. Turn on the videos. Forum, Smith. Come on. The first one was sold goods of rupees 50,000 at 10% TD and 10% CD to Raj and received 50% by check and 20% by cash. तो यहाँ पे पूरा credit नहीं है. Entire transaction is not on credit, neither entire is on cash. It's a mixture of both cash and credit. अभी cash और credit में check और cash दोनों cash ही treat करना है आपको. Okay, check भी immediate payment है, cash भी immediate payment है, तो दोनों पे CD लेना है आपको. Keep that in mind. So what you do is when you do the calculations, first of all you take the gross amount, that is 50,000. 50,000 पे you take first TD. TD तो पहले ही subtract कर देना है, दोनों पे आता है, cash as well as credit पे. So you get 10%, that is 5,000. All right, and then you get the net amount to be 45. Then you divide this 45 into 3 parts. Normally we divide this in 2 parts. Here you divide it in 3 parts. Okay, what are those 3 parts? It will be cash, check and credit. Cash, check and credit. Okay, and the cash part is 20%, the check part is 50%, and the credit part is obviously 30%, जो बचा हुआ है. Have you got that? So 20% of 45,000 is 9,000, 50% is 22,500, and 30% is 13,500. That is the credit component. Then you go for the CD part.
cash discount is 10%. So 9,000 का 10% is 900. So net amount is 8,100. 22,500 का 10% is 2,250. So net amount is 20,250. And credit पे obviously कोई CD आने वाला नहीं है. इधर पार्टी का नाम आ जाता है, that is Raj. Is that clear? All of you got that? And then just pass that entry because it is a combination of cash, check and credit with discount. तो आपका journal entry हो जाएगा cash account debit, bank account debit for check, discount allowed account debit, Raj account debit for the credit component, and Raj account debit for the credit component to sales account. To sales account. Cash account debit should be 8,100. Bank account debit should be 20,250. डिस्काउंट अलाउड इन दोनों को ऐड कर देने का. डिस्काउंट अलाउड में दो है ना, दोनों सीडी है. कैश और चेक आपने दोनों पे सीडी लिया हुआ है. So you add up both the CDs. So you get 3,150. Then you have Raj account that is 13,500 and the total sales are 45,000. This is your combined entry. This is your combined entry. Did you all get it? All of you? Understood properly? Dishita, Nishi, Smith, Virali. From last time I'm telling you, turn on the videos. Sir, I'm having some network issues. Okay. So Baki, Kashish and Smith, come on, start. Chalo. Even me. Okay. Now, cash, bank, discount allowed, Raj to sales. All of you got the entry? Now, let's proceed further. First वाला clear है सबको? Partly cash, partly credit ही था. खाली cash part was divided into cash and check. Okay. So you just need to keep in mind that you need to take discount CD component on both cash as well as check part. Okay. Now, bought goods worth 60,000 from Prashant at 7.5% trade discount and half amount is paid by cash. Okay. So it wasn't cash discount. तो ये कहीं books में record होने वाला नहीं है. I saw some of you had made this mistake. Some of you recorded the cash discount part also. ये cash discount नहीं है यहाँ पे, TD है. तो क्या करना है, सीधा 60,000 पे पहले तो 7.5% TD माइनस कर देने का. What is 7.5% of 60,000? 55,500. 5,500. Sorry, 6 is 42, 6 5 is 30, 4,500. 4,500. 4,500. So you get 55,500. अच्छा, net amount is 55,500 and उसका half cash, half credit. 27,750 and 27,750. आपका journal entry बनेगा purchase account debit to Prashant to cash. Purchase to Prashant to cash. Okay. Account debit will be purchase account debit will be 55,500. Purchase account debit will be 55,500. To Prashant will be 27,750. To cash will be 27,750. Is that clear? So this is partly cash, partly credit again, but without any cash discount. सिर्फ TD था, TD बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता है, तो पहले ही मैंने माइनस कर दिया. फिर है रिटर्न गुड्स ऑफ 550 टू प्रशांत. तो एंट्री क्या बन जाएगा आपका? प्रशांत टू परचेज रिटर्न्स. प्रशांत टू परचेज रिटर्न्स, दैट इज 550 rupees. Got it? And the next one we have is sold goods worth 90,000 to Ranveer on credit at 10% trade discount. So sold goods on credit दिया हुआ है, तो 90,000 का 10% subtract करो, you get 81,000. Your entry should be Ranveer account debit to sales account 81,000. Ranveer account debit to sales account 81,000. Okay. Received commission 4,500. Your entry should be cash account debit to commission account 4,500. Cash account debit to commission account 4,500. Okay. Received a check of 80,000 from Ranveer in full settlement of his account. Entry should be bank account debit, discount allowed debit to Ranveer.
बैंक अकाउंट डेबिट 80,000, रणवीर से 81 लेना था, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 1,000 to Ranveer, it will be 81. The bank discount to Ranveer. Purchase a computer worth 80,000 from Reliance company by check. By check दिया हुआ है. Some of you have made this mistake. You have written Reliance company. That is wrong. So computer ST input SGST to bank. Your entry should be computer account debit, input CGST debit, input SGST debit to bank. Okay. So computer account debit should be 80,000. Input CGST and SGST is 14 211,000. 11,200. Yeah, 11,200, 11,200, and 102,400. This should be your amount. Computer input to bank. Got it? Computer input to bank. 80,000, 11,200, 11,200 to bank 102,400. Then wages paid are 13,000. Entry should be wages to cash 13,000. Paid for life insurance premium. Entry is actually drawings to bank, but drawings to cash भी चल जाएगा. अगर आपको क्लिक हो जाए, याद आ जाए, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट्स एंड आपका क्लेम इंश्योरेंस वगैरह जो भी है, एज वेल एज या लाइफ इंश्योरेंस का कुछ प्रीमियम है, ये सब ट्रांजैक्शन आपके बैंक के थ्रू होते हैं. ठीक है, तो इस वाले ट्रांजैक्शन का एंट्री होना चाहिए ड्रॉइंग्स टू बैंक. Drawings to bank rather than drawings to cash. Better write drawings to bank, as insurance and investment and claims and everything, the process is done via bank. Okay, so drawings to bank 17,000. Wages to cash ऊपर वाला 13,000, नीचे वाला drawings to bank है 17,000. Then sold goods of 28,000 to Tushar, who paid us 18,000 immediately. So again, it is partly cash, partly credit. So entry should be cash account debit, Tushar account debit to sales. Cash account debit, Tushar account debit to sales. 10, Tushar 10 to sales 28,000. Cash, Tushar to sales. That's your journal entry. Is that clear? All of you got that? Tell me any doubt, anyone? सर रणवीर का सेकंड एंट्री समझाना. रणवीर वाला देखो, पहला एंट्री समझा तुमको, क्रेडिट पे बेचा था उसको एट 10% TD, तो रणवीर टू सेल्स. तो पहला एंट्री था उसका रणवीर टू सेल्स, दैट वाज 81,000. ये हमने क्रेडिट पे उसको सेल किया था ना, मतलब 81,000 लेना बाकी था रणवीर से. अभी यहाँ पे क्या दिया, रिसीव्ड अ चेक ऑफ 80,000 फ्रॉम रणवीर इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट. मतलब लेना था 81 और मिला 80, तो आपका एंट्री हो गया बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि चेक से आ रहा है पैसा. डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट एक्सपेंस टू रणवीर. रणवीर से लेना था 81, so you'll credit his account by 81, you are shutting down his account by 81, but you will get only 80,000. चेक खाली 80,000 का आ रहा है, and बाकी 1,000 is discount. 1,000 is discount. So bank account debit, discount allowed debit to Ranveer's account. Okay, 81 लेना था, 80 मिला. अभी बैंक डिस्काउंट टू सेल्स नहीं लिखना है, सेल्स तो हो चुका है पहले क्रेडिट पे, इनकम जनरेट हो चुकी है, अभी तो पैसा लेना बाकी है. अक्रूवल सिस्टम. ओके, इनकम पहले ही क्रेडिट कर दी, अमाउंट रिसीवेबल था, डेटर से जो पैसा आना था दैट वाज रिसीवेबल, तो उसको क्रेडिट किया, एसेट कम कर दिया. अंडरस्टूड? बैंक डिस्काउंट टू रणवीर. All right, so we continue now to the next problem which we were doing. I think it was sum number 22. Let's take out that 22nd problem. I think we finished till sorry, we finished till twentieth. 20th के बाद आगे जाते हैं हम लोग. The next one.
21st one. Okay. 21st, what is happening? Check. Purchase goods from A, rupees 5,000 at 10% TD, and the same way sold to B at 5% TD on list price. So पहले तो you purchase goods of 5,000 from A. Is the purchase on cash or credit? Tell me. Credit. Is the purchase Credit. on cash or credit? So it's on Credit. credit. पार्टी का नाम दिया है, cash के बारे में कुछ नहीं दिया. All of you are getting that? Okay. So purchase कैसे हो रहा है? Credit पे हो रहा है. Which discount are we going to subtract? TD only. Only trade TD. discount. We'll subtract only trade discount. बराबर है. So 5,000 पे 10%. पहले तो you subtract 5,000 पे 10%. 10% TD minus करना है. That is 500. The net amount is 4,500. बराबर है? Is that clear? Entry should be what? You are buying it on credit. So entry should be purchase account debit. Purchase account debit. Mr. A's account. Purchase account debit to Mr. A's account. And that should be 4,500. बराबर है? 4,500. Okay. And sold the same to B at 5% TD on the list price. This is goods purchased on credit, being goods purchased on credit. And the sold the same to B at 5% TD on the list price. So what's your list price? So that is 5,000. On that you take 5%. This you know, right? Whenever you buy and sell the same quantity, your gross price will remain same. All of you got that? Gross price you are supposed to take it as same. 5,000 पे you take 2.5% TD, तो ही आप प्रॉफिट कर पाओगे, नहीं तो सेंस नहीं बनता है. MRP पे ही सब डिस्काउंट्स लेना है आपको. So you get 5,000 पे 2.5%, which is 250. अरे not 2.5, sorry, 5%. तो 5% आएगा ना? 5%. 5,000 पे 5%, that is 250. 5,000 पे 5%, that is 250. Net amount is 4,750. Purchase का TD was 10%. Sale का TD is 5%. Okay. Entry क्या बनेगा? How are the sales being made? How is the sales being made? Cash or credit? Tell me. Credit. Credit. The sales are also being done on credit, right? So entry क्या बनेगा आपका sales का? It will be B's account debit to sales account. B's account debit to sales account. B's account debit to sales account, that will be 4,750. 4,750. Okay. B's account debit to sales account, being goods sold to B. Sold to B. Okay. Now think and tell me, what is the profit for us in this transaction? What is the profit for us in this transaction? 250 rupees. 250 rupees का profit हो गया. 4,500 में purchase किया था. Can you see that? And sales कर दिया उसको 4,750 में. So we made a profit of 250. This is what is called as a gross profit. ये gross profit और net profit डिटेल में हम लोग लर्न करेंगे आगे जाके. इसको ग्रॉस प्रॉफिट कहा जाता है. आपका ट्रेडिंग एक्टिविटी का मेन रिजल्ट को कहा जाता है ग्रॉस प्रॉफिट. ओके. It includes your sales income, sales revenue, and your direct expenses which are related to either buying the goods or producing the goods. So it's called your gross profit, basic profit, important profit of the business. Okay. इसके बाद और भी खर्चे बाकी है अपने, जैसे कि स्टेशनरी हो गया, सैलरी हो गया, रेंट हो गया, कमीशन हो गया, उनको माइनस करके आपको मिलता है नेट प्रॉफिट. ठीक है. तो ग्रॉस प्रॉफिट कहा जाता है इसको, याद रखना. देन 21st के बाद आगे देखो 22nd में क्या दिया है? B returned half of the goods and the same were returned back to A. B returned half of the goods and the same were returned back to A. मुझे बताओ अभी ये जब ये रिटर्न्स का बात आया ना, तो आप वो दो मेथड मैंने बताया था, ये ग्रॉस वाला भी है. ग्रॉस वाले से कर लो एक ही साथ, तो आपको इजी भी पड़ेगा
जिसको नेट जम रहा है नेट से भी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंट्री से मतलब है, अमाउंट से मतलब है फाइनली अपने को, ठीक है। तो ग्रॉस अगर हम लोग अप्रोच फॉलो करें तो कैसे सोचना है, देखो आपने परचेज किया था 5000 में, 5000 वाज ग्रॉस, राइट। वही 5000 का आपने सेल कर दिया, बराबर है। 5000 का परचेज था, वही 5000 का आपने सेल कर दिया, ठीक है। अब उसका हाफ बी इज रिटर्निंग, उसका हाफ मतलब 5000 का हाफ, आई एम टेकिंग ग्रॉस अमाउंट। तो ग्रॉस अमाउंट वाज 5000, 5000 का हाफ कितना होता है 2500। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2500, बट दिस 2500 इज ग्रॉस और नेट? Gross, sir. We have ग्रॉस। to calculate still net. हाँ, तो हाउ विल यू गो फ्रॉम ग्रॉस टू नेट? Subtract the Sir, by Subtract the calculating TD. the Which TD. TD you are going to subtract? सेल्स का TD। sales. सेल्स रिटर्न्स हो रहा है तो सेल्स का TD माइनस करना है ना, सेम प्राइस पे होता है दोनों। सेल एंड सेल्स रिटर्न दोनों सेम प्राइस पे, सेलिंग प्राइस पे होता है प्रॉफिट के साथ। आर यू गेटिंग दैट प्रीत? इज दैट क्लियर? सो सेल्स वाला TD यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लो आप, कितना है सेल्स वाला TD? 5%। So I think that comes to 125 and net amount is 2375. 2375. Is that clear? 2375 rupees. Now your entry will be what? Your journal entry will be, क्या हो रहा है? सेल्स रिटर्न याद है? सेल्स रिटर्न्स की एंट्री जिया शाह, कैन यू टेल मी सेल्स रिटर्न की एंट्री? Sales return account debit to Mr. B's account. Very good. Sales returns account debit to Mr. B's account. Okay, sales return and purchase return will happen on credit, not on cash. So sales return is like expense, debit that expense, and party is the giver. So sales return account debit to B's account, amount 2375. 2375 being goods returned by B. Being goods returned by B. Is that clear? Comfortable? इधर खत्म नहीं हुआ है और आगे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? And the same were returned back to, and the same were returned back to A. And the same were returned to A. तो यही गुड्स, यही डिफेक्टिव लॉट हमने ए को रिटर्न किया। तो अप्रोच कैसा रखना? ग्रॉस का रखना। नेट का भी कर सकते हो, ग्रॉस का भी रखो तो भी चलेगा। ग्रॉस का इजी पड़ेगा, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन में आप क्रैक कर सकते हो। तो मैं क्या किया, मैंने सोचो 5000 ग्रॉस का खरीदा, 5000 ग्रॉस का बेचा, उसका हाफ रिटर्न हुआ, मतलब 2500 ग्रॉस का रिटर्न हुआ। वही ग्रॉस का लॉट मैं रिटर्न कर रहा हूँ, वही 2500 ग्रॉस मैं रिटर्न कर रहा हूँ। तो आई एम टेकिंग द अमाउंट एज ग्रॉस 2500, बट वी नो दिस इज ग्रॉस, यही हम रिटर्न कर रहे हैं ए को ग्रॉस। तो ग्रॉस लेना है कि नेट लेना है? एक्चुअल अमाउंट क्या लेना है एंट्री में आपको? Net. नेट लेना है। तो अब कौन सा टीडी माइनस करोगे? परचेज का टीडी। परचेज का Purchase टीडी। TD. परचेज रिटर्न्स कर रहे हो ना, सेल्स रिटर्न्स कर रहे थे तो सेल्स का टीडी माइनस कर दो, परचेज रिटर्न कर रहे हो तो परचेज का टीडी माइनस कर दो। इज दैट क्लियर? तो ग्रॉस है ना, ग्रॉस तो हमेशा टीडी माइनस करना ही है, क्योंकि ग्रॉस वैल्यूज आर नेवर रिटर्न एनीवेयर, इमेजिनरी था। आपको डिस्काउंट माइनस करके नेट प्राइस लिखना है वहां पे, ठीक है। वो कहीं पे रिकॉर्ड नहीं हुआ था ग्रॉस। तो टीडी का खाली ध्यान रखना, सेल्स रिटर्न्स के वक्त सेल्स का टीडी, परचेज रिटर्न्स के वक्त परचेज का टीडी। आई थिंक 10% इज द टीडी ऑफ परचेज, so I'm subtracting that, which is 250. So net amount is 2250. Net amount is 2250. Is that clear? Understood? Now entry क्या बनेगा? What is the journal entry for purchase returns? Mr. account to purchase return. Mr. A's account debit to purchase returns account, correct? Purchase returns will be credited, credit all incomes and gains. Purchase का reduction हो रहा है purchase return, and A's account will be debited by 2250. 2250. Sorry. Being goods
returned to A. Being goods returned to A. Being goods returned to A. Okay. Now, can you guys tell me net देखो ये चारों ट्रांजैक्शन को एक साथ देखना अभी. Please look at these 4 transactions together. ये चारों ट्रांजैक्शन को एक साथ देखो और बताओ what is my net purchase का expense. What is my net purchase का expense? What is my net purchase expense in this? 2250. My net purchase expense is 2250. All of you agree on that? How come 2250? Purchase किया था 4500 जिसमें से 2250 हमने return कर दिया. So 2250 is my net purchase expense. Can you tell me my net sale income? 2375. आधा return हो चुका है तो 235 is my net sale का income. This is my net purchase. This is my net sale. Net का मतलब purchase less return and sales less return. Is that clear? Purchase में से return minus कर दिया तो net purchase. Sales में से return minus कर दिया तो net sale. अब यहाँ से देख के बताओ what is my final profit at this point of time. At this point of time, what is my final 125. profit? 125 rupees. Now my profit is not what we said earlier. 250 is not my profit. Now my profit is only 125. All of you got the logic? दोनों रिटर्न हो गया आधा आधा. अभी मेरा फाइनल प्रॉफिट 250 है ही नहीं. अभी मेरा फाइनल प्रॉफिट 125 रुपीस हो गया in this transaction. All of you got understood? Anyone any doubt? Heath Kamani, are you getting that? Yes, sir. Okay. So let's proceed to the next one now. What do we have? Check. Third one. Purchase goods of 6,000 at 10% TD and 5% CD from P. Sold half the goods to Q at 5% TD on list price. पहले तो मुझे बताओ purchase कैसे हो रहा है? How is the purchase happening? Cash or credit? Credit. Credit. All of you agree on that? All of you agree on that? It's on credit basis. Okay. Which discount should come? Party का नाम दिया, cash के बारे में कुछ नहीं दिया. So it's on credit. So which discount should come? Only trade. Only trade discount. So 6,000 पे 10% TD minus कर दो. 6,000 पे less 10% TD. You subtract. So how much you get? 600. Net amount is 5,400. What is the journal entry for buying goods on credit? We know it now very well. Purchase account debit to P account. Purchases account debit to P's account. Purchase account debit to P account. That should be 5,400. 5,400 being goods purchased on credit. Being goods purchased from P. Yeah, being goods purchased on credit. From P. Okay. Being goods purchased from P, that is 5,400. Comfortable? Now, the next part, the second half. I did not take CD over here. All of you understood why I did not take CD part? Because it's on credit basis. It's on credit basis, so CD आने का सवाल नहीं है. How is the sale happening, guys? How is the sale happening? Credit. Credit. That's also on credit. That's Credit, also on credit. credit. So, are we selling full lot or half? Half. So 3,000. So, what will be my gross price now? 3,000. Half. Okay, half of 6. My gross price will become 3,000. On this, how much TD am I supposed to take? Sale के ऊपर क्या है? 5% है. So, 3,000 का 5% is 150. Net amount is 2850. And you are selling on credit, so your entry should become what? Q account debit to sales account. Q is the receiver, debit the receiver, goods are income, credit all incomes and gains, sales. So 2850. Sold them for 2850.
So being goods sold to Q. Being goods sold to Q, यहां तक तो नॉर्मल था, परचेज भी क्रेडिट पे था, सेल भी क्रेडिट पे है. इसके बाद वाला इज इंपॉर्टेंट. यहां तक सिंपल था, इसके बाद वाला इज इंपॉर्टेंट. Q returned half the goods and the same were returned back to P. अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ग्रॉस का अप्रोच लेता हूं, इफ आई एम टेकिंग द ग्रॉस वाला अप्रोच, तो कैन यू टेल मी कितना ग्रॉस प्राइस का गुड्स रिटर्न हुआ है? ग्रॉस प्राइस का कितना? ग्रॉस 1500. All of you are getting that? All of you, Virali, Tanya, Isha, Riya. What is happening? We purchased goods of gross price 6000 and उसका आधा हमने सेल किया था 3000. ग्रॉस का हमने सेल किया था, उसका हाफ रिटर्न हो रहा है ना. उसका हाफ मतलब 3000 का हाफ. So 1500, but 1500 is gross, as I have taken gross. Can we write gross figures in the entry? No. So we are supposed to do what? We are supposed to subtract TD. Which TD should I subtract? I'm talking about sales returns. तो sales returns के वक्त sales का TD, right? 5%. सेल्स रिटर्न्स के वक्त सेल्स का टीडी माइनस करोगे तो ही नेट अमाउंट एग्जैक्ट मिलेगा. तो 5% माइनस करो, दैट इज 75. नेट अमाउंट इज 1425. इज दैट क्लियर? गॉट इट? तो ग्रॉस वाला अप्रोच लोगे अगर रिटर्न्स में तो काफी इजी पड़ेगा आपको. सीधा ग्रॉस वैल्यूज ही लिख लेना सब जगह पे. फिर आस्क योरसेल्फ अ सिंपल क्वेश्चन, डू वी रिकॉर्ड ग्रॉस अमाउंट्स एनीवेयर? नो. So we just subtract TD and get the net. And now which TD are we going to subtract? So sales returns के वक्त sales का TD, purchase returns के वक्त purchase का TD. Simple as that. It's true. So 1425. And what will be the journal entry for sales returns? Always on credit basis sales returns. क्या होगा आपका entries? Sales return का entry क्या बनेगा? Sales return account to Q account. Sales return account debit to Q's account. Sales return account debit to Q's account, and amount should be how much? 1425. 1425. This is being goods returned by Q. Being goods returned by Q. बट यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा है, हमें एक और चीज देखनी है. आगे वाला पार्ट पे दिया हुआ है the same were returned to P and the same were returned to P. Think and tell me, if the same goods were returned, can I write the same amount 1425? Is that okay? No. No. Why? Because sales and sales return were happening at selling price with profit वाला प्राइस था. ये दोनों selling price पे हो रहा है, sales और sales return. Whereas purchase and purchase return happen at cost price. तो हमें cost price ढूंढना पड़ेगा. कैसे ढूंढोगे बताओ? How will you find out P का amount? 5400 divided by 4 or 6000 divided by 4 and subtract TD 10%. Exactly. Okay. Either you take the net approach or you take the gross वाला approach. अगर हम लोग gross वाला approach लेते हैं तो क्या हो जाएगा? यही जो 1500 का लॉट है जो अपने को रिटर्न आया था, वही 1500 का लॉट हम रिटर्न कर रहे हैं. सेम ग्रॉस अमाउंट का गुड्स हम रिटर्न कर रहे हैं, सेम लॉट है. तो 1500 रुपीज अगर मैं ग्रॉस लिख दूं यहाँ पे, बट ये ग्रॉस है तो क्या करना है मुझे? टीडी माइनस करना है. अब कौन सा टीडी माइनस करोगे? 10% करोगे. परचेज रिटर्न्स के वक्त परचेज का टीडी है 10%, दैट इज 150. नेट अमाउंट इज 1350. इज दैट क्लियर? और एक अप्रोच है नेट अप्रोच, एज वीर सेड जस्ट नाउ. व्हाट इज द नेट अप्रोच? यू अंडरस्टूड? वो वाला भी हमने किया है. सीधा 5400 जो नेट अमाउंट है उसका हाफ का हाफ मतलब 1/4. 5400 का हाफ लो और उसका भी हाफ कर दो क्योंकि हाफ रिटर्न हो रहा है. तो 5400 का 1/4 करोगे तो भी आपको 1350 ही मिलेगा. ये बैठ गया रिटर्न्स का कंपोनेंट सबके दिमाग में पक्का? कंसेप्ट इज क्लियर? I didn't get it. ग्रॉस वाला पार्ट नहीं समझा आपको? Gross मतलब TD के बगैर ना. ग्रॉस मतलब विथ टीडी है, वो ग्रॉस मतलब बिफोर टीडी है. तो टीडी माइनस करना है ना तुमको. ग्रॉस प्राइस कैन नॉट बी रिकॉर्डेड एनीवेयर, है ना? तो 1500 रुपीज का जो ग्रॉस का अपने को रिटर्न आया है, वही 1500 का ग्रॉस का वी आर रिटर्निंग बैक टू द सप्लायर, है ना?
तो अभी ग्रॉस प्राइस कहीं पर रिकॉर्ड तो कर नहीं सकते हैं, तो हमें नेट ढूंढना है। ग्रॉस से नेट कैसे ढूंढोगे? टीडी माइनस करो। तो कौन सा टीडी माइनस करना है? सेल्स रिटर्न्स के वक्त यू सबट्रैक्ट सेल्स का टीडी, परचेज के वक्त परचेज परचेज का टीडी, परचेज रिटर्न्स के वक्त परचेज का टीडी, तो ही सेम वैल्यू मिलेगा ना। मैंने तुमसे 10,000 का गुड्स 9,000 में खरीदा, बराबर, और वही 10,000 का गुड्स 9500 में बेच दिया। तो अगर मुझे सेल्स रिटर्न हो रहा है, अगर पूरा का पूरा रिटर्न हो रहा है, तो मैं 9,500 लिखूंगा, 5% टीडी माइनस करूंगा ना 10,000। और वही गुड्स मैं कर रहा हूं, तो मैं 10% माइनस करूंगा, 9,000 आना चाहिए नेट अमाउंट। सो सेल्स रिटर्न्स के वक्त सेल्स का टीडी 5% और परचेज रिटर्न्स के वक्त परचेज का टीडी 10%, तो ही सेम प्राइस मिलेगा ना, कॉस्ट प्राइस। सेल्स रिटर्न एट सेलिंग प्राइस, परचेज रिटर्न एट कॉस्ट प्राइस। दैट क्लियर? सो 1350 का एंट्री क्या बनेगा? व्हाट इज द एंट्री फॉर परचेज रिटर्न्स गाइस? P account debit to purchase return. P account debit to purchase returns account. P account debit to purchase returns account, that is 1350. Sir, Okay. हाँ. then, how to find the net profit in this? One second ना. Being goods returned to P. Being goods returned to P. अभी इस ट्रांजैक्शन में अगर आप ये Gross चारों, profit, right? Not net profit in this. net will be gross basically because there are no other expenses. So net and gross यहाँ पे सेम मिल जाएगा आपको। एक सेकंड में डेट लिख देता हूँ। It will be gross profit obviously, but since there are no other expenses right now, that itself is net. This is on 24th. देखो ये ट्रांजैक्शन में आपको कैसे ढूंढना है अभी प्रॉफिट को? कैन यू कंपेयर? देखो आपने खरीदा था 5,400 का, लेकिन हाफ ही सेल किया है, तो कैन यू कंपेयर योर 5,400 का परचेज विद 2,850 का सेल? इज इट राइट? No, we have to divide half. हाँ, 1,700. हाँ, 5,400. 2,700 का एक्चुअली परचेज गिना जाएगा। 2,700 का मैंने 2,850 में सेल किया, लेकिन उसमें से आधा रिटर्न हो गया, तो 1,425 का रिटर्न हो गया, सेल्स रिटर्न, एंड 1,350 का परचेज रिटर्न हो गया। तो फाइनली व्हाट इज माय नेट परचेज? नेट परचेज इज ओनली 1,350 एज ऑफ नाउ, एंड नेट सेल्स इज 1,425। तो अगर मुझे का प्रॉफिट ढूंढना है, तो प्रॉफिट विल बी 1,425 माइनस 1,350, 75। वो बाकी का गुड्स अभी जब सेल करूंगा तब उसका प्रॉफिट लॉस ढूंढूंगा ना। आधा गुड्स सेल करना बाकी है अभी भी आपका। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आधा ही आपने सेल किया है, तो जब आपको प्रॉफिट लॉस ऐसे में ढूंढना है तो आप हाफ करके ढूंढो, जैसे हमने शेयर्स पे किया था। ये पूछेंगे नहीं, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग इट इज दिस प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन। हम लोग अभी करते भी नहीं, हम लोग ईयर एंड पे करते हैं ना गुड्स का प्रॉफिट लॉस। Goods का profit loss is always calculated at the end of the year. Is that clear? All of you understood? Okay. What in net we subtract it from the MRP only, no? Yes. MRP means gross. Okay. MRP Without and gross is one and the same. Trade discount is always taken on MRP, gross price. Okay. Now, next one, 25th. 25th वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम दिमाग लगा के करना है आपको। इसमें एक अलग कंसेप्ट भी है। 25 वाला देखो ध्यान से एकदम क्या दिया हुआ है। 25 में परचेज गुड्स फ्रॉम भावेश एट 10% TD, परचेज गुड्स फ्रॉम भावेश एट 10% TD एंड 5% 2% CD. Purchase goods from Bhavesh at 10% TD and 2% CD. Paid 4,410 और बाजू में ब्रैकेट में दिया हुआ है रिवर्स। अब वो रिवर्स ना भी दिया हो तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इट मीन्स वन एंड द सेम। ओके, ये सेंस क्या बना इसका देखो। इसका परचेज गुड्स फ्रॉम भावेश एट 10% TD and 2% CD. ओके, पेड 4,410. जस्ट यूज योर ब्रेन एंड टेल मी पहले तो, is this transaction on cash, credit,
or partly cash, partly Cash. credit? What do you think? Cash. Cash. Entirely Cash. cash? Cash. Entirely cash, all of you agree? Why? What is the hint? Why do you Paid. think Paid. paid? Paid rupees Paid rupees 4410. 4410 दे दिया है. So it is on cash basis. Okay. If it is on cash basis, which discount should come? Both TD and Only TD. Only TD. Both. Both TD and Both TD and CD. Agar it is on cash, then both the discount should come, right? TD as well as CD. Agree? अब सोचने वाली बात देखो. TD CD करते किस पे हो आप? ग्रॉस अमाउंट पे कैलकुलेट करते हो पहले TD फिर CD. बट प्रॉब्लम में कहीं पे ग्रॉस अमाउंट दिया है. Pura, we'll have to reverse the whole process. हाँ, we'll have to reverse the process. That's why that hint of reverse. Can you see that? वो hint देंगे नहीं, just for your understanding it is. Normally they'll give you. अच्छा, directly देख के भी click होना चाहिए आपको कि ये gross नहीं है. 4410 is not the gross amount. Did you all understand why 4410 is not the gross amount? Why? Because he paid only he this much. paid. And when do you pay the amount? You pay the amount After TD and after deducting the discounts or before deducting the discounts? after After deducting. deducting. After deducting the discount. After the deduction of discount. Discount को minus करने के बाद, Forum, Heath, Isha. Discount को minus करने के बाद आप pay करते हो amount. तो 4410 क्या है? 4410 जो है वो दोनों डिस्काउंट माइनस करने के बाद का अमाउंट है. डोंट राइट दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. सपोज कुछ तो ग्रॉस अमाउंट था, उस पे टीडी मैंने माइनस किया होगा, तो टीडी कितना है? 10%. उस पे मैंने 10% टीडी माइनस किया, तो आई गॉट सम नेट अमाउंट. उस पे मैंने 2% सीडी माइनस किया, then I got the final cash amount, that is 4410. This is the cash amount which is 4410. All of you with me till this point? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ से तीनों चारों क्वेश्चंस. These are all Podar NM types. Very, very important ones. Okay. Cash is 4410 which I am paying. That is the biggest hint. Whenever you pay or receive any amount, ये याद रखना है. जब आप कोई अमाउंट पे करते हो या जब आप कोई अमाउंट रिसीव करते हो, दैट अमाउंट इज ऑलवेज आफ्टर डिडक्टिंग द डिस्काउंट, नॉट बिफोर डिस्काउंट. इट इज आफ्टर डिस्काउंट, राइट? नाउ हाउ डू आई गो फ्रॉम 4410 टू दिस बिफोर सीडी का अमाउंट? व्हाई डू आई नीड टू गो? sir, it is 98% of the net amount. 1 minute. Yeah. Why do I need to go back? That is the next question. जरूरी और है how पूछे? much discount is received by us? हाँ, ये डिस्काउंट भी रिकॉर्ड करना है ना बुक में. सीडी का अमाउंट ढूंढना है ना. सीडी इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स. चलो टीडी नहीं किया तो भी प्रॉब्लम नहीं है, सीडी तो करना पड़ेगा आपको. टीडी तो चलो वैसे भी रिकॉर्ड नहीं होता, नहीं भी ढूंढा तो कोई वांदा नहीं, बट सीडी तो रिकॉर्ड करना है, तो ये आपको ढूंढना ही पड़ेगा. अब कैसे करोगे बताओ? 4410 divided by 0.98, because if you consider net amount to be X and a cash discount to be minus 2x upon 100, so it will be 98%. राइट 98x upon 100. राइट. देखो ऐसे मत कर देना. सम पीपल व्हाट दे डू, 4410 का डायरेक्टली 2% कर देते हैं. ये नहीं होगा आंसर आपका. सी, आई विल टेल यू अ सिंपल एग्जांपल. 100 रुपीज का 10% माइनस करो तो 90 मिलता है, राइट? 100 में से 10% माइनस करोगे तो you'll get 90, राइट? तो 90 को 10% ऐड करोगे तो 100 मिलता है क्या? करके देखो. 90 को 10% ऐड करोगे तो कितना होता है? नहीं, 99. ऐसे नहीं करना है कभी भी, ठीक है? So remember this, okay? This is a common mistake that happens. ऐसे सिचुएशन में आप डायरेक्टली 4410 पे 2% ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो ऐसे सिचुएशन में भी मेक एन इक्वेशन, व्हाटएवर वी टोल्ड वही मैं इधर इक्वेशन में बता रहा हूँ. इक्वेशन बहुत सिंपल है. देखो क्या इक्वेशन है. अमाउंट बिफोर सीडी माइनस सीडी इज इक्वल टू अमाउंट आफ्टर सीडी. अमाउंट बिफोर सीडी माइनस सीडी इज अमाउंट आफ्टर सीडी. प्योरली लॉजिकल है. देखो बिफोर सीडी मतलब ये नेट,
बिफोर सीडी में से मैंने सीडी माइनस किया, कैश डिस्काउंट माइनस किया, तो आफ्टर सीडी अमाउंट मिला ना। सिंपल सा लॉजिक है। सो अमाउंट बिफोर सीडी माइनस सीडी इज अमाउंट आफ्टर सीडी। कंफर्टेबल विद द इक्वेशन फर्स्ट? बिफोर सीडी में से सीडी माइनस करो तो आफ्टर सीडी। अभी let us assume that let the amount before CD be 100. Let the amount before CD मतलब डिस्काउंट माइनस करने से पहले, डिस्काउंट माइनस करने से पहले let us assume that the amount is 100 rupees, 100 रुपया था। तो कितना था? What was my percentage of CD guys? 2%। 100 रुपीज का अगर 2% लोगे तो 2 रुपीज मिलेगा ना। 100 माइनस 2 करोगे ना 2%, तो you will get your net amount to be 98। सिंपल सा कैलकुलेशन, 100 रुपया। आई एम अज्यूमिंग दैट द अमाउंट बिफोर सीडी इज 100। तो अगर 100 था तो 2 रुपीज माइनस किया, 2% ऑफ 100 विल गेट 98 रुपीज। ओके, नाउ व्हाट डू वी नो आउट ऑफ द टू? डू वी नो अमाउंट बिफोर सीडी? क्वेश्चन चेक करो। डू वी नो अमाउंट बिफोर सीडी और वी नो अमाउंट आफ्टर सीडी? After CD. We know amount after CD, so I'll just write it below 98. I'll just write it below 98. Now you just cross multiply. You know cross multiplication in case of ratios you have done many times, right? Cross multiplication ratio में करते थे ना स्कूल में। 1/2 is 5 what? 10. Cross multiply. तो same way अगर 100 was before CD तो 98 is after CD। वैसे ही 4410, ये 98 is 4410। What is this 100? X cross multiply. So how do you do that? Cross multiplication. What is this X? 4410 into 100 divided by 98. 4,500 rupees. This is 4,500. कैसे किया? Once again, जब भी आपको पेड या रिसीव्ड अमाउंट दिया है तभी पहला हिंट क्या है? पहला हिंट ये है कि दैट अमाउंट इज आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट। दैट अमाउंट इज आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट। ओके, सीडी के बाद वाला है तो हमें सीडी से पहले वाला अमाउंट चाहिए। सीडी से पहले वाला अमाउंट ढूंढने के लिए क्या करने का? यू जस्ट सिंपली मेक अ वर्किंग नोट इक्वेशन। अमाउंट बिफोर सीडी माइनस सीडी इज अमाउंट आफ्टर सीडी। यहां तक क्लियर सबको? अभी अज्यूम करो बिफोर सीडी 100 है तो -2 98। अगर सीडी 5% होता तो 100 - 5 95। अगर सीडी 10% होता तो 100 - 10 90। बराबर है? नाउ लुक इनटू द मतलब परसेंटेज में कैलकुलेट नहीं करना है ना इसको? नहीं, परसेंटेज नहीं, ये नंबर ही रुपीज मैंने लिखा है ना। 100 रुपीज, 100 रुपीज -2 इज 98 रुपीज। परसेंटेज नहीं, मैंने अमाउंट ही ले लिया है। 100 रुपया अज्यूम किया। गॉट इट? अभी आपको क्वेश्चन में देखना कि कौन सा अमाउंट है आपके पास। यू नो बिफोर सीडी अमाउंट और आफ्टर सीडी अमाउंट। यू नो आफ्टर सीडी अमाउंट। तो आफ्टर सीडी अमाउंट यहां पे लिखना है। आफ्टर सीडी के नीचे लिख लो 4410। अभी नाउ जस्ट सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई टू गेट द बिफोर सीडी अमाउंट। अगर बिफोर सीडी 100 था तो आफ्टर सीडी 98 है। अगर आफ्टर सीडी 4410 है तो बिफोर वाला कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई, तो मिल गया 4500। अभी आप राइट हो कि रॉन्ग आप वेरीफाई भी कर सकते हो। हाउ विल यू क्रॉस चेक वेदर यू हैव डन राइट और रॉन्ग? Subtract 2%. Subtract 2%. हाँ, 4500 का 2% कैलकुलेट कर लो। यू शुड गेट 90 रुपीज। यस, 4500 का 2% विल बी 90 रुपीज। ऑटोमेटिकली विल गेट। अंडरस्टूड नाउ? अच्छा, ये थोड़ा लॉन्ग कट मेथड है। एक शॉर्टकट मेथड भी है इसका। एक शॉर्टकट मेथड भी है ये कैलकुलेट करने का। ठीक है, पहले ये मेथड सबको समझ आया? बताओ मुझे। Sir, we can do x minus 2% x is 4410. या वो भी वही हो गया ना वापस इक्वेशन क्रॉस मल्टीप्लाई। एक और शॉर्टकट है वो मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट। पहले ये समझ में आया? सर ये भी कैलकुलेशन दिखाना होगा। हाँ, कैलकुलेशन पीछे रफ में दिखाना है, फेयर में नहीं, आफ्टर द सम। ठीक है, पहले ये मेथड में किसी को डाउट? एनीथिंग यू डिड नॉट प्लीज आस्क। विदुषी को समझा? हाँ सर। नाउ शॉर्टकट। व्हाट इज अ शॉर्टकट? व्हेनेवर यू हैव पेड और रिसीव्ड अमाउंट, यहाँ पे अपने पास पेड अमाउंट था 4410, ऑल ऑफ यू सॉ दैट। तो यू गो, अगर आपको बिफोर वाला अमाउंट ढूंढना ना, बिफोर वाला, बिफोर सीडी वाला,
So you search for the nearest round figure on the higher side. Nearest round figure on the higher side. तो 4410 से nearest round figure on the higher side क्या है? 4,500. 4,500. तो ट्राई करो 4,500 का 2%. कितना बैठ रहा है क्या आंसर में? बैठ गया. 2% is 90. But that won't work always, no? That won't work always, but what happens is in your questions, normal questions of college or in your exams, mostly आपको एक दो ट्रायल अटेम्प्ट में ये आंसर आ जाएगा. ज्यादा मेहनत करने की जरूरत इसमें Actually, कुछ we have solved calculation so दिखाने many की जरूरत नहीं है. that we have solved so many transactions that we actually know that 4,500 minus 90 will give you 4,410. That also you know, that also you have known since many transactions we have done. और यही टाइप के फिगर्स आएंगे आपको, क्योंकि एग्जाम में ना वो, नहीं तो पेपर करेक्शन बिकम्स वेरी डिफिकल्ट अगर गंदे फिगर आ गए तो जनरली यू विल गेट राउंड फिगर्स एज योर आंसर्स. ओके, सो दैट्स अ तो ट्रायल. अगर ऐसे किया तो कैलकुलेशन नहीं दिखाएंगे तो चलेगा? नहीं, कैलकुलेशन वैसे भी पीछे ही दिखाना है, रफ में ही है वो आपका, उसका कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स वगैरह नहीं है. गॉट इट? तो नहीं भी दिखाओगे, डायरेक्टली भी करोगे तो चलेगा. सर TD/CD का जो पहले सम किया था उसमें आपने बोला था ना कि पीछे कैलकुलेशन करो. पीछे वो रफ में है अभी. रफ पीछे मतलब वो रफ, उसका कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है तुमको. नहीं किया तो मार्क्स कटेगा? नहीं. No marks will be deducted for those calculations. If it's done there, then also no marks will be deducted. Done there में ना तुम कॉलेज टीचर से पूछ लो respective. Some colleges they allow, some they don't. That Because I make mistake copying. Yeah. But now you will have to make थोड़ा habit. सम के पीछे ही करके ट्राई करने का करो. Okay? क्योंकि सम के बीच में all colleges they don't allow. सम के पीछे करो, रफ में करो, no problem. No extra marks for that. Did you understand that shortcut वाला मेथड? ट्रायल एंड एरर मेथड बोलते हैं इसको. एक दो ट्रायल में आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है. और अगर आपको वो नहीं करना है ट्रायल एंड एरर मेथड, ये फुल प्रूफ मेथड रेडी है आपके पास. यू फॉर्म दिस इक्वेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई, 100% एक्यूरेट आंसर यू विल गेट इमीडिएटली. आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा वहां पे. दैट्स इट. इज दैट क्लियर? सो आइदर वेज यू कैन अप्रोच. ओके, अच्छा ये बिफोर टीडी ढूंढू क्या? ऊपर दो जो मैंने सर्कल बनाए हुए हैं, क्या जरूरत है? Because it's never recorded in the book. Never recorded in the books, तो जरूरत ही नहीं है अपने को. ओके, अच्छा बिफोर टीडी अमाउंट ट्रायल एंड एरर से ढूंढ के बता सकते हो? 500 and 5,000. 5,500. ओके, इधर अभी 4,600 4,700 नहीं है, थोड़ा जजमेंट यूज करने का ना. 10% है तो थोड़ा ज्यादा बड़ा अमाउंट होगा, तो 5,000 5,500 6,000 टाइप्स. ओके, तो हो सकता है तो वैसे ट्रायल एंड एरर अप्लाई करो. सबको नहीं भी जमता है ट्रायल एंड एरर. अगर जमता है तो यू ट्राई, नहीं जमता है तो यू फॉर्म द इक्वेशन. दोनों मेथड्स है अपने पास, ठीक है. बढ़े आगे. 26th वाला. अच्छा एंट्री तो करते हैं इसका. एंट्री क्या बनेगा मुझे बताओ. यू बॉट गुड्स, नहीं यू सोल्ड गुड्स. बॉट गुड्स परचेज किया था फॉर कैश. व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री फॉर दिस? debit to cash account to discount received account. Yes, very good. Purchase account debit to cash account to discount received account. ये डिस्काउंट रिसीव्ड का ही पूरा चक्रावा था, इसीलिए हमने ये सब उल्टा मेथड करके सब कैलकुलेशन किया. Got it? Because we wanted to calculate discount received which is entered in the books of accounts. So purchase account debit shall be 4,500. ये रहा after TD वाला amount. To cash में आएगा 4,410. To discount received 90. Being goods purchased for cash. सर पर इधर रिवर्स क्यों लिखा हुआ था? हिंट था, उल्टा करना है कैलकुलेशन. और हिंट था, हिंट देगा नहीं तुमको पता ही होना चाहिए कि उल्टा. रिवर्स मतलब बिफोर सीडी ढूंढना पड़ेगा ना, इसके लिए वहां पे रिवर्स दिया है. नॉर्मली हम सीधे जाते हैं ना, टीडी माइनस करते हैं, सीडी माइनस आगे जाते हैं. इधर 4,410 पे सीडी नहीं ले सकते कि वो ऑलरेडी सीडी माइनस करने के बाद है, तो उल्टा गए, इसको रिवर्स बोलते हैं. नेक्स्ट वाला देखो अभी क्या दिया हुआ है 26th में. सोल्ड गुड्स टू भावेश एट 5% टीडी 1% सीडी रिसीव्ड 9,405. अब देखो वी हैव सोल्ड बट दे हैव गिवन अस द रिसीव्ड अमाउंट.
They have given us the received amount. Use your logic. Is the received amount before CD or after CD? After CD. आफ्टर सीडी है, तो वापस कुछ तो ग्रॉस था, उस पे टीडी माइनस किया होगा आपने, कितना परसेंट टीडी है, 5% टीडी है, उस पे यू गॉट द नेट, और फिर आपका सीडी आपने माइनस किया है 1%, उसके बाद आपको मिला जाके कैश प्राइस विच इज 9405. ये सीन समझ में आया कि नहीं बताओ? 9405 is not the gross price. Did you all understand? 9405 is not the gross price. It is the final amount after discounts. Now from this value, you want to reach on the amount before CD. After CD से before CD जाना है. Directly कर सकते हो कि equation बनाना पड़ेगा? 9,500. डायरेक्ट 9,500. सबको shortcut करना है. 95 CD. All of you are comfortable with shortcut. Anyone wants equation? Still I will make it. चलो safe side के लिए शॉर्टकट से भी करो, वांदा नहीं. इक्वेशन भी एक दो सम में लिख लो तो आपको रिवीजन के वक्त काम आएगा. अमाउंट बिफोर सीडी माइनस सीडी इज अमाउंट आफ्टर सीडी. ओके, अमाउंट बिफोर सीडी माइनस सीडी इज अमाउंट आफ्टर सीडी. इक्वेशन इज ऑलवेज हैंडी. कैसा भी फिगर रहेगा यू कैन गेट द आंसर. ओके, ऑलवेज अज्यूम बिफोर सीडी इज 100 रुपीज स्टैंडर्ड. ओके, बिफोर सीडी अगर 100 रुपया है, अब सीडी कितना परसेंट है? How much is CD? 1%. 1%. 100 minus 1 will give you 99 rupees. Agree? 100 minus 1 will give you 99 rupees. And what is this 99 after CD? This is the amount what we know, right? This is the amount what we know. That is what is 9405. So write it below 99, 9405 and cross multiply. मतलब अगर 100 rupees before CD था तो 99 after CD है, 9405 आफ्टर सीडी है, तो बिफोर वाला क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई. इट विल बी 9405 into 100 divided by 99 which comes to 9500. 9500. Did you understand? 9500 rupees. Is that clear? Got it? All of you. ट्रायल एंड एरर से मिला सबको आंसर. नियरेस्ट राउंड फिगर ऑन द हायर साइड इज 9500. ट्राई एंड अप्लाई 1% ऑन दैट, दैट इज 95. तो योर आंसर फिट्स परफेक्टली. सो 9500 minus 95 will give you 9405. सिंपल एज दैट. अंडरस्टूड? अब यहाँ पर आधा काम हुआ है, आधा काम बाकी है, एंट्री करनी बाकी है अभी भी. What is the journal entry? You have sold goods on cash basis against a cash discount. So what should be your journal entry for this? Cash account discount allowed account debit to sales. Exactly. Cash account debit, discount allowed account debit to sales account. Okay. Cash account debit, discount allowed account debit to sales. Cash account debit will be how much? 9405. Did you all get that? 9405. Discount allowed is 95. To sales is 9500. To sales is 9500. Cash discount to sales being goods sold for cash. दोनों टेक्निक्स क्लियर है आपको? एक शॉर्टकट है ओरली जो मैंने बताया, और दूसरा है आपका दिस वन, अपना इक्वेशन बताया और दूसरा शॉर्टकट. बराबर है? एक इक्वेशन है और दूसरा अपना शॉर्टकट. नियरेस्ट राउंड फिगर ऑन द हायर साइड. आइदर ऑफ द टू मेथड्स यू कैन अप्लाई. ये यूज कब करना है और क्यों करना है, ये पहली चीज समझ में आ गई सबको? When are we supposed to use that? Whenever we are having after CD का amount. Okay? After CD है तो आपको ये करने की जरूरत है, वरना नहीं करना है. ठीक है? Then 27th वाला देखो क्या हो रहा है. 27th जुलाई 2016. Monica settled her account of rupees 10,000. Monica settled her account of rupees 10,000 at 2% CD by paying half in cash and half by check. Think and tell me, is the transaction on, what is happening over here? मतलब, are we buying, selling, or the debtor is settling an account? Debtor is Debtor is settling. Debtor is settling an account. Settling an account.
Okay. Is that 10,000 before CD or after CD? Before CD. Before CD. Before CD. 10,000 were receivable from the debtor, right? So before CD ka amount is 10,000. You're getting that, Yashvi? So 10,000 pay, you will have to subtract CD. Now my question, CD will come only on cash, only on check or on both? Both. 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 तो आप क्या कर सकते हो, पहले ही 10,000 में से CD माइनस कर दो, अच्छा पड़ेगा. आप ऐसे भी कर सकते हो, 10,000 को कैश और चेक में डिवाइड करो, फिर दोनों पे CD करो, फिर दोनों का CD ऐड कर दो, वैसे भी चलेगा. या तो फिर पहले ही 10,000 से CD माइनस कर दो. क्यों मैं पहले ही माइनस कर रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है कि दोनों पे CD आने वाला है, तो 2% CD माइनस कर दिया. 200 रुपीज माइनस करो, यू गेट 9,800. एंड 9,800 में कितना कैश है, कितना चेक है? 4900 हाफ इज कैश एंड हाफ इज चेक. बराबर है. तो 4900 is cash, 4900 is by check. Our debtor Monica settled our account. Monica settled her account with us by paying. So she is paying us. So what should be the journal entry for this? Can you guys tell me? आराम से Bank account, cash account, Discount discount allowed account. to Monica. Exactly. Discount कहाँ मत जाना? CD है तो books में record होगा. Yes. Bank account debit, पैसा आया. Cash account debit, पैसा आया. Discount allowed account debit. Expense increase हुआ. Debit to what? Monica. Debtor कम हो गई. Monica कम हो गई. Debtor कम हो गया. तो discount allowed debit. Amounts क्या होंगे? Cash and check will be 4900 each. All of you got that? How much will be discount? Discount will be 200 and Monica's account is shut down 10,000. Debtor reduced by 10,000. Debtor cleared by 10,000. Is that clear? Debtor जो है 10,000 से कम हो गया. Being Monica's account settled. Yeah, Monica settled account with us. Being Monica settled account with us. Okay. You can also write cash check received from Monica. Narration absolutely fine. Okay. Next one, 28th one. What is happening? 28th में Steve's account was settled by us. Steve's account was settled by us by giving cash 3,000, furniture 4,000, in full settlement of 8,000. ये in full settlement चमका कुछ? What is this in full settlement? Discount received. Discount received. Discount allowed. Who is Steve? Is he our creditor or debtor? Creditor. 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 Because we are paying him. So he is our creditor, right? How much we were supposed to pay him? 8,000. 8,000 we are supposed to pay him. But we aren't paying him 8,000 actually. How much we are paying him actually? 7,000. 10,000. So that 1,000 rupees will become what? Discount received. Discount received. Discount received. You got that? Discount received. So what should be your journal entry for this entirely? Steve account Debit. debit to cash account to furniture account to discount received account. Very good. Steve account debit cash. Steve account debit to cash because cash is going out, to furniture because furniture is going out, furniture decreases, and to discount received. Don't forget to record this discount received. What was the hint for you to get that discount received? That is the phrase given over there. What is that phrase? In full settlement. In full settlement का part दिखे, मतलब it is In full settlement. in full settlement, मतलब there is some discount involved. Okay, there is some discount involved. So Steve's account debit shall be 8,000 to cash. How much are we giving? 3,000. Yes. Cash we are giving 3, furniture we are giving 4, and discount is 1,000. Okay, being Steve's account settled at discount. Steve's account settled at discount. Comfortable? All of you got that? Okay. Now, I want you all to try the 29th one on your own. You did the same thing. आज मैंने first
होमवर्क में डिस्कस किया था. लेट्स सी 29th one, similar transaction. Try it. Try 29th, come on, all of you. सर Yeah. सर अगर मेरा स्टेशनरी का शॉप है तो उसमें जब मैं सेल्स होगा मेरा मतलब सब हाँ. कुछ रिटेल शॉप है तो हाँ, अभी एक एक पेन कोई लेने आता है तो उसका मैं एंट्री करूँगा. पेन वेन का एंट्री कैसा रहता है, वो पूरे दिन का एंट्री वो लोग एक साथ मार देते हैं. अगर बहुत बड़े अमाउंट के नहीं हो रहे हैं ना, अभी पेन पेंसिल इरेजर वगैरह ऐसे हो रहा है ना तुम्हारा, तो एक पूरे लमसम अमाउंट का एंट्री हर 3 घंटे में एक एंट्री, अगर ऐसे काफी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं या मतलब वो 6 लोग घंटे. याद रखते हैं कि कितना सेल हुआ कितने रुपए आए ऐसा. हाँ, देखो आप बिल बना के देते हो ना जनरली, जो भी सेल हुआ है. अगर छोटा अमाउंट है तो आप बिल नहीं बनाते हो, कैश में रिकॉर्ड कर देते हो. तो खाली एक पेंसिल से आप लिख के रखते हो. कोई लोग है ना स्टेशनरी का शॉप रहता है या छोटा शॉप रहता है ना, तो एक रफ ये रखते हैं बुक, उसमें वो लोग लिखते जाते हैं. या रिचार्ज वाले देखा होगा आपने, एक रफ बुक में लिखते रहते हैं वो लोग. छोटा छोटा अमाउंट आप लिख सकते हो, पेंसिल एक 5 6 10, और फिर एक साथ आप सेल्स की एंट्री मार सकते हो दिन. Yeah, every 3 hours you can pass an entry. Every 2 hours, 3 hours, 6 hours और full day का एक साथ. Generally they pass it for full day only. Small businessmen na, they don't bother about every transaction on transaction basis. They do it together only. Full day का या 2-3 दिन का भी साथ में कर देते हैं, ऐसा भी होता है. Small businessman को टेंशन लेने का जरूरत नहीं है ज्यादा इसमें. जहाँ पे आपके टर्नओवर बढ़ जाते हैं और वैल्यूएबल आइटम्स काफी बढ़ जाती हैं, वहां पे ऑन ट्रांजैक्शन, ये हम लोग बिग बिजनेस ट्रांजैक्शन, कंपनी बेस्ड ट्रांजैक्शंस वी आर डूइंग. यहाँ पे आपको कर रहे हैं सोल प्रोप्राइटर का, लेकिन बड़े वाले का कंपनी लेवल अमाउंट के एंट्रीज कर रहे हैं हम लोग. तो आपको हर ट्रांजैक्शन का एंट्री करना है. मिला? तो क्या दिया वहां पे? goods of, purchase goods of 10,000 from Radha. Purchase goods of 10,000 from Radha at TD of 10% and CD of 2%, paid 1/4 by cash, 1/4 by check. तो पहले TD तो माइनस करना है, सब पे आने वाला है. उसके बाद आप इसका 2 पार्ट के जगह 3 पार्ट कर सकते हो. 1/4 is cash, 1/4 is check, so 2/4 is credit. What is 2/4 half? So 2250 cash, 2250 check, and 4,500 is credit. Then you calculate the CD on that is 2%, so that comes to 45 rupees. There be CD check पे भी आता है CD 2%. सर वो 2/4 हाफ ही हुआ ना 9,000 का. Yeah, 2/4 is half, correct. And credit में no CD, तो this is 2205, 2205. ये कैलकुलेशन पहले समझ में आ गया सबको? Anyone who did not get this? पक्का समझा? सीडी दोनों पे लेना है, कैश और चेक. एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, तुम्हारा जो भी इंटरनेट बैंकिंग है, सब पे सीडी लेना है. इमीडिएट पेमेंट पे सीडी आता है, और ये सब इमीडिएट पेमेंट है. क्रेडिट को छोड़ के सब कुछ इमीडिएट पेमेंट है, तो सब पे सीडी लेना है आप. इज दैट क्लियर? बैंक ड्राफ्ट है आपका, ईसीएस पेमेंट है, सब पे सब पे सब पे. ऑनलाइन कुछ भी दिया है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड, सब पे सीडी आएगा, एक्सेप्ट फॉर क्रेडिट. क्रेडिट ट्रांजैक्शन पे खाली सीडी नहीं आता है. तो आपका पूरा कंबाइंड एंट्री क्या बनेगा? आपने जो पास किया है जरा चेक कर लो. इट शुड बी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि चेक. Sir, IMPS is like told that it is like installments every month or at regular intervals. So should we consider CD on it? No. See, you are not getting the point. If you are making the payment by IMPS right now, it is generally used for making part payment. That's a different thing.
बट इफ यू आर मेकिंग अ पेमेंट, आपने गुड्स खरीदा और IMPS से पे किया उसको, तो फिर वो इमीडिएट पेमेंट ही गिना जाएगा. देन देयर विल बी सब्सिडी ऑन दैट. इज दैट क्लियर? आपने पेंडिंग रखा है, 1 महीना 15 डेज के बाद आप पे करेंगे, बाद में आप IMPS से पे करेंगे, तो दैट इज ऑन क्रेडिट बेसिस, तो उस पे सीडी नहीं आएगा. बट इमीडिएट पेमेंट कर रहे हो IMPS के थ्रू या ECS के थ्रू, RTGS, NEFT जो भी है, ओके, तो आपको डिस्काउंट लेना पड़ेगा वहां पे. Got it? So this will be 2 cash, 2 bank, 2 discount received, and on the party Radha's account. This should be purchase account debit will be 9,000 after TD. To cash will be 2205, 2205. Bank में भी 2205. Discount कितना आएगा? What will be your discount amount? 90 rupees. 90. 45 plus 45. दोनों CD add कर दो, and Radha में आएगा 4,005. That is the credit part. So how much are we still supposed to pay to Radha? 4,500. ये क्रेडिट पे हुआ, इस पे कोई सीडी नहीं. अभी ये मैंने 20 डेज 25 डेज के बाद कैसे भी पे किया, IMPS, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सो नो सीडी ऑन दैट. इट विल बी राधा टू बैंक 4,500 आफ्टर 20-25 डेज. इज दैट क्लियर? 20-25 डेज के बाद राधा टू बैंक. सो बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राधा, partly on cash, partly on credit, partly on cash and partly on. Problem number 22. Bolo, any doubts? Anyone? Tell me. बढ़े आगे. Next problem. I'll tell you. (26) किसी को चाहिए था ना उस दिन 26, छोटा सा प्रॉब्लम. Sum number 26. Last problem. Okay, sum number 26. (26) problem is again for practice. 26 is again a practice problem. Sum number 26. So what is the question for that? नहीं, वो कुछ क्वेश्चन नहीं है इन द बुक्स ऑफ, कुछ नहीं, जस्ट प्रैक्टिस एंट्रीज. नो हेडिंग रिक्वायर्ड. Just write number per debit credit. Okay. (26th one? So we write serial number only. सीरियल नंबर. प्रैक्टिस एंट्रीज है ना, एग्जाम में आपको डेट वाला ही आएगा, डेट पर्टिकुलर LF डेबिट क्रेडिट. ये प्रैक्टिस एंट्रीज है, इसके लिए कुछ हेडिंग नहीं है, कुछ खाली सीरियल नंबर लिख के यू कैन स्टार्ट. नंबर पर्टिकुलर LF डेबिट क्रेडिट. इंस्टेड ऑफ डेट यू विल हैव नंबर पर्टिकुलर LF डेबिट क्रेडिट. इन द बुक्स ऑफ वगैरह कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस एंट्री. Narration we can skip in this sum, not an issue, same ही है. Narration we can skip. Okay, transactions are important, calculations are important. Purchased goods for rupees 10,000 at 10% TD and 2% CD from Vishal. Paid 4,410. क्या दिया है देखो. Purchased goods of 10,000 at 10% TD and 2% CD from Vishal. Paid 4,410. तो देखो पहले तो आपको ग्रॉस अमाउंट दिया हुआ है 10,000. कैन यू सी दैट? और विशाल का नाम भी और पेड भी है, पेड 4,410.
So now there is a question whether it is on cash, credit, or partly cash, partly credit. Partly cash, Partly cash, partly Partly cash, cash, partly partly credit. Partly cash, partly क्वेश्चन credit. देख के क्लिक हुआ पार्टली कैश पार्टली क्रेडिट क्यों? क्योंकि आपने परचेज किया है 10,000 का. कैन यू सी दैट? अभी 10,000 टीडी तो आना ही है, तो आप पहले टीडी माइनस करके देख लो, यहाँ पे वेरीफाई कर लो. टीडी इज 10%, तो यू गेट 1,000. सो नेट अमाउंट कितना होता है? 9,000 होता है. लेकिन आपने पे कितना किया है? 4410 ही पे किया है आफ्टर 2%. तो ऑब्वियसली 2% से पहले का अमाउंट 9,000 तो नहीं होगा, है कि नहीं? इतना तो देख के पता चल जाता है. सो आपने पूरा पेमेंट नहीं किया है. दैट इज द पॉइंट ओवर हियर. यू हैव नॉट मेड द एंटायर पेमेंट. आपने थोड़ा पेमेंट किया, मतलब इट इज पार्टली कैश पार्टली क्रेडिट. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? It's not entirely credit because you have paid something. It's not entirely cash because you have paid something, not entire amount. So it is partly cash, partly credit. Okay. So half or half, I don't know half. We'll get to know half. Exact half. Exact half ही आ रहा है. Yes. This is 4,500 or 4,500 4,500 credit. आएगा. Yeah. Did you get that hint? 4410 is after discount or before discount? After After discount. discount. After discount से before discount कैसे जाने का? दो तरीके अभी हमने देखे थे. या तो इक्वेशन बनाओ या तो शॉर्टकट. क्या अप्लाई किया? शॉर्टकट. What is the nearest round figure on the higher side? 4,500. सबको जम रहा है 90 rupees शॉर्टकट discount. या फिर I'll make the equation otherwise. Okay, tell me. All of you नहीं got sir, that? easy है. Easy है, चलो बढ़िया. So 4,500 is the nearest round. अप्लाई करो उस पर. 4,500 पे 2% बैठ रहा है 90 रुपीज, तो 4410 आ रहा है आपका. तो कैश कंपोनेंट इज 4,500 लेस सीडी 2% 90 रुपीज, तो नेट अमाउंट इज 4410. अभी अगर कैश वाला पार्ट 4500 है तो क्रेडिट वाला भी कितना होगा? 4500, 1,500. क्योंकि टोटल 9 होना चाहिए ना, कैश और क्रेडिट मिला के. कैश और क्रेडिट मिला के तो 9,000 ही होना चाहिए. तो मिल गया अपने को सब अमाउंट्स. अभी आपको क्या करना है? एंट्री करना है पार्टली कैश पार्टली क्रेडिट का फ्रॉम विशाल. तो क्या बनेगा आपका एंट्री? अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस टू कैश अकाउंट टू व्हाट? Discount Received account. And to Vishal account. हाँ, परचेज टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव टू विशाल. सीडी है, इसके लिए डिस्काउंट रिसीव्ड भी आ जाएगा. So purchase to cash to discount received to Vishal. How much will write in purchase? 9,000. How much will write in cash? 4410. 4410. How much will write in discount received? 90. 90. And how much in Vishal? 4,500. Narrations we can skip. Partly cash, partly credit. Did you all get that? पार्टली कैश पार्टली क्रेडिट का बत्ती चमका. आफ्टर सीडी से बिफोर सीडी कैसे आना है वो चमका. ऑल ऑफ यू. नेक्स्ट वन. वी रिटर्न गुड्स ऑफ 500 टू विशाल. हमने विशाल को गुड्स रिटर्न किया. व्हाट शुड बी द जर्नल एंट्री फॉर दैट? Vishal account debit to purchase return. In the first one, in Vishal's credit में हम 4,500 ही लिखेंगे ना. हाँ, 4,500 लिखा तो ये क्या नीचे गया है, थोड़ा ऊपर लो ना. है? स्क्रीन इज नॉट विजिबल ना? But it had gone down. अच्छा. Sir, visible ही है. Okay. So Vishal to purchase returns now. Vishal to purchase returns. We are returning goods to Vishal. Vishal is the receiver. Credit all incomes and gains. So Vishal to purchase returns. मुझे एक बात बताओ. Will you do anything with the amount or we will write it as it is? As it is. Gross isn't mentioned. Gross isn't mentioned. That is the cash over here. Only if they mention gross, you need to subtract TD. Okay? ग्रॉस वगैरह कुछ नहीं दिया तो सेम अमाउंट, वो नेट ही है, आफ्टर टीडी है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है. तो बीइंग आई एम नॉट राइटिंग द नरेशन, सॉरी. गुड्स रिटर्न टू विशाल. ओके, नो नरेशंस. बीइंग गुड्स रिटर्न टू विशाल. थर्ड वन.
settled Vishal's account with discount. Settled Vishal's account with discount. पहले तो मुझे ये देख के बताओ विशाल कौन था, क्रेडिटर था कि डेटर था? क्रेडिटर था, Creditor. बाकी था. All of you agree on that? He was a creditor because you bought goods from him. Acha, next question. How do you identify how much are you supposed to pay to Vishal? 4,000. How much are we Sir, supposed to pay? debit minus credit. From the first Credit sum. minus debit. Are we supposed to pay him 4,500 or 4,000? 4,500. 4,000. Why not 4,500, guys? Purchase return. Because we have Purchase They have return. already Yeah. returned 500 rupees. हाँ, he has already returned 500, right? We have returned. हमने goods खरीदा था 4500 देना बाकी था, लेकिन 500 का तो रिटर्न कर दिया. अभी कितना देना बाकी है? 4,000 rupees. इसका शॉर्टकट भी बता दिया था. अगर क्रेडिटर को कितना पैसा देना है, that you need to find. How much are we supposed to pay to our creditor? That you need to find. So how will you do that? Do simply credit minus debit. Do simply credit minus debit. किसका credit minus debit? विशाल का. विशाल जहां जहां क्रेडिट हुआ है वो ऐड करो, और विशाल जहां जहां डेबिट हुआ है वो माइनस करो. तो विशाल का क्रेडिट माइनस डेबिट कितना मिला? 4,500 minus 500, 4,000. Simple as that. Did you get it? यही अगर आपको ढूंढना था कि डेटर से कितना पैसा लेना है, आप कैसे करते? डेटर से कितना पैसा लेना है? हाउ वुड हैव कैलकुलेटेड? Debit minus credit. डेबिट माइनस क्रेडिट. सी लॉजिकल है. डेबिट का मतलब क्या है? रिसीवर रिसीवर रिसीवर. डेबिट द रिसीवर. उतने का वो रिसीवर है. क्रेडिट का मतलब क्या? गिवर गिवर गिवर. तो अगर रिसीवर ज्यादा है, गिवर कम है, तो लेना बाकी है. और गिवर ज्यादा है, रिसीवर कम है, तो अपने को देना बाकी है. तो इज अवर क्रेडिटर. इज दैट क्लियर? सो क्रेडिट माइनस डेबिट करके मिल गया 4,000. अभी अभी पढ़ो पढ़ो पढ़ो. आर वी गिविंग हिम 4,000 और इज देयर समथिंग एल्स? With Settled discount. Vishal's With discount. account with discount. With discount. With discount मतलब डिस्काउंट माइनस करना है कि नहीं? करना है. करना है. कोई कंफ्यूज हो जाते हैं, सर विथ डिस्काउंट मतलब क्यों डिस्काउंट माइनस? विदाउट डिस्काउंट है तो डिस्काउंट माइनस करने का ना. ऐसा नहीं होता. लैंग्वेज पढ़ो, मीनिंग समझो. विथ डिस्काउंट मतलब हमने जब पे किया तब उसने डिस्काउंट अलाउ किया. ओके, तो हमने डिस्काउंट रिसीव किया विथ डिस्काउंट. विदाउट डिस्काउंट मतलब नो डिस्काउंट. सेल होता है, आप लोग शॉप में जाते हो, बोलता है विदाउट डिस्काउंट, नो डिस्काउंट, तो आपको ज्यादा पैसा देना पड़ता है. विथ डिस्काउंट मतलब डिस्काउंट काट के. कोई कंफ्यूजन मत रखना इसमें. विथ डिस्काउंट मतलब डिस्काउंट काट के. विदाउट डिस्काउंट मतलब पूरा पैसा. सिंपल. ओके, सो 4,000 रुपीज में डिस्काउंट आएगा. सीडी आएगा. कितना था सीडी विशाल वाला? 2%. 2% of 4,000 is 80 rupees. So net amount is 3,920. Did you all get that? 3,920 मिला सबको? Alright. एंट्री क्या बनेगा आपका? विशाल को आपने सेटल किया ना विथ डिस्काउंट, तो विशाल अकाउंट डेबिट. विशाल को यू हैव सेटल्ड, राइट? Vishal is the receiver. Debit the receiver to what? Cash account to discount received account. Vishal account debit to cash to discount received. Did you all get that? नहीं समझा विदुषी? Yeah. Now अमाउंट क्या होगा बोलो? विशाल में कितना लिखोगे, कैश में कितना लिखोगे, डिस्काउंट में कितना लिखोगे? बोलो बोलो. विशाल में 4,000, 4,000 कैश में 3,920 एंड डिस्काउंट में 80. 80. बैठा दिमाग में सबके? विशाल्स अकाउंट सेटल्ड विद डिस्काउंट. थोड़ा नीचे लो ना स्क्रीन. ऐसा कैसा तुमको नहीं दिख रहा है? Visible now? Okay. So Vishal to cash to discount received. Okay, 4,000, 3,920 and 80 rupees. Comfortable? Okay. Now, next one is what?
आ गया. Sold goods of 8,000 at 10% TD, 1% CD and received a check of 2,376 from Vasant. देखो, received a check, received cash, paid cash, received check, paid check. ये amounts after discounts हैं कि before discounts हैं? After discount. After discount है, after discount है. अभी ध्यान से देखो, gross amount भी दिया है आपको 8,000. पूरा देख के बताओ, is the transaction on cash, credit or partly cash, partly credit? Partly cash, partly cash, partly credit. Again it is partly cash, partly credit. और अपना shortcut use करके बताओ, what is the amount before CD? 2,400. 400. 2400. बैठ रहा है पक्का? 2,400 is before CD and on that you calculate CD, that is 1%. 24. So 24 and 2,376 net amount fit हो रहा है सबका? पक्का? So now 8,000 पे पहला step, what are we supposed to do? First step, you are supposed to subtract TD, trade discount. You are supposed to subtract TD of trade discount, that is 10%. 10% of 8,000 comes to 800. Net amount is 7,200, right? Net amount is 7,200. On this 7,200, you divide this portion into two parts. Some part is cash, some part is credit. Right now, I don't know what is cash credit. लेकिन मैंने अपना दिमाग लगाया, शॉर्टकट यूज किया और मुझे मिला बिफोर सीडी अमाउंट कितना है 2,400, राइट? सो आउट ऑफ दिस 7,200, 2,400 इज कैश, राइट? सो व्हाट इज क्रेडिट? 4,800 इज क्रेडिट. बचा हुआ इज क्रेडिट. डिड यू गेट दैट? बचा हुआ इज क्रेडिट. सिंपल. और ये सीडी माइनस कर दो कैश पार्ट में 1%, विच इज 24. The net amount is 2,376. 2,376. Comfortable? सर ऊपर जब हम 7,200 जब भी कैश और क्रेडिट पे करते हैं तो उसमें वो 1/2 और वो सब बताने की जरूरत है? हाफ नहीं चलेगा. हाफ 1/3 वो सब नहीं दिखाया तो चलेगा. आपको मेन ये दिखाना है, कैश क्रेडिट. कैश का अमाउंट कितना है, क्रेडिट का अमाउंट कितना है, बस. हाफ 1/3. इधर अभी हाफ नहीं है, इधर क्या है 1/3 2/3 है. 1/3 2/3 ना भी दिखाओ, it's absolutely okay. Clear? Okay, sir. Now, where were we? Entry. Partly cash, partly credit और चेक मिला है वसंत से. हाँ, ये याद रखना. तो एंट्री क्या बनेगा आपका? Vasant account debit, bank account debit. Vasant account debit, bank account debit, discount allowed account debit to sales account. Exactly. Vasant account debit, क्योंकि वसंत is the debtor now. Bank account debit, check आया है. Discount allowed account debit, expense increased to sales account, credit all incomes and gains. Vasant account debit में कितना आएगा? How much will write in Vasant? 4,800. How much will write in bank? 2,376. Discount 24 and sales में आएगा 7,200. Sold goods partly on cash, partly on credit. Is that clear? Partly on cash, partly on credit. ठीक है. Fifth one, Vasant returned goods of 1,000 gross. अरे बाप रे, ग्रॉस आ गया तो क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना है टीडी. कौन सा टीडी माइनस करना है? वसंत का टीडी. सेल्स के वक्त सेल्स रिटर्न्स के वक्त सेल्स का टीडी. तो 1,000 ग्रॉस है, उसमें वसंत का टीडी माइनस किया 10%, तो कितना होता है 100. नेट अमाउंट इज 900. एंट्री क्या बनेगी सेल्स रिटर्न्स की? Sales return account debit to Vasant. Sales returns account debit to Vasant account. Debit all expense and credit the giver. So 900 rupees का goods उसने वापस कर दिया. डेटर कम हो गया तो भी आप देख सकते हो, डेटर कम हो गया तो भी क्रेडिट कर सकते हो उसको. डेटर कम हो गया तो क्रेडिट, डेटर कम हो गया तो क्रेडिट. तो सेल्स रिटर्न टू वसंत 900. Got it? Okay. Now, sorry, the last part.
Vasant settled his account by giving a printer of 1900 and computer of 1800. Vasant settled his account by giving us printer and computer. अभी चेक करके बताओ पहले तो वसंत कौन था, डेटर था कि क्रेडिटर था? Debtor. Debtor. डेटर था, ये तो सब पता चल गया, सेल्स किया है तो डेटर है. अभी हाउ विल यू कैलकुलेट हाउ मच आर यू सपोज टू गेट फ्रॉम दैट डेटा? हाउ मच आर यू सपोज टू? 3900. minus 900. 800 Debit minus credit. डेबिट माइनस क्रेडिट, सिंपल. या लॉजिकली भी सोच सकते हो. ओके, लॉजिकली सोचो, आपने गुड सेल करते वक्त 4800 लेना बाकी था, पार्टली क्रेडिट वाला पार्ट, और 900 का रिटर्न हो गया है, उतना पैसा कम हो जाएगा. या तो मैकेनिकल प्रोसेस है, डेबिट माइनस क्रेडिट. वसंत का डेबिट, चेक वसंत का डेबिट कितना है? 4800 है, और वसंत का क्रेडिट कितना है? 900 है. तो वसंत का 900. डेबिट माइनस क्रेडिट, तो 4800 minus 900, that is 39. 3900, right? 3900. अभी 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 आपका जर्नल एंट्री क्या बनेगा? ध्यान से पढ़ना, क्या क्या मिला है वहां से. Printer account, debit, computer account, debit, discount allowed account. डिस्काउंट आएगा कि नहीं? Discount. सर आएगा It तो will come 3700 और 3000. हाँ, दिख रहा है सबको? इन सेटलमेंट अकाउंट इज सेटल्ड, सो प्रिंटर अकाउंट डेबिट, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड या रिसीव्ड? allowed. डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू वसंत अकाउंट. तो प्रिंटर कितने का आया? यू गॉट अ प्रिंटर ऑफ 1900, कंप्यूटर ऑफ 1800. 18 प्लस 19 कितना होता है? 3700. लेना था 3900. तो सेटलमेंट में दे रहा है, मतलब बाकी का डिस्काउंट अलाउड. दैट क्लियर? दैट कंप्लीट्स योर वसंत का सेटलमेंट. बोलो, रिवर्स वाला मेथड क्लियर सबको? रिवर्स वाला ये सब में रिवर्स ट्रांजैक्शंस आर क्लियर? टेल मी एनी डाउट्स? नो डाउट्स, ऑल ऑफ यू? बढ़िया. सो वी स्टॉप ओवर हियर. ठीक है, आज के लिए इतना काफी है. रिवाइज करना, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक का प्रॉब्लम आ जाएगा, होमवर्क वो आपको सेंड करना है कल शाम तक आराम से. एंड वन मोर थिंग आई वांटेड टू टेल, ग्रुप आपने जो भी है बैच 1 में आ गए सब लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे? ऑल ऑफ यू हैव जॉइंड बैच 1? इज स्टिल एनीवन देयर इन बैच 2? हीत आ गया बैच 1? हाँ सर आ गया. ऑल ऑफ यू आर इन बैच 1, राइट? तो अभी डायरेक्टली आपको बैच 1 के सब मैसेजेस बैच 1 में ही आएंगे उधर ग्रुप में व्हाट्सएप के. ठीक है, कोई अगर बैच 2 में है तो शिफ्ट हो जाना फटाक से. और एक चीज मेरे को बोलना था, आपका टेस्ट होगा अभी जर्नल का. ठीक है, दिस टेस्ट इज ऑन नेक्स्ट ट्यूसडे. ठीक है, आज है आपका आई थिंक थर्सडे, सो फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे एंड ट्यूसडे. ट्यूसडे को आपका टेस्ट होगा. ट्यूसडे होगा या वेडनेसडे होगा, मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्ट. ठीक है, या तो वेडनेसडे इवनिंग होगा 6 to 8 के बीच में, या तो फिर ट्यूसडे इवनिंग होगा. लेक्चर तो होने वाला है. तो पोर्शन क्या होगा आपका? सर कितने मार्क्स? 30 मार्क्स, 1 hour, 30 मार्क्स. ओके, नो ऑब्जेक्टिव्स, ओनली जर्नल एंट्रीज. एंड पोर्शन आपका होगा अभी तक का प्रॉब्लम, दैट इज सम नंबर 26, आज जो हमने कंप्लीट किया. ठीक है, सम नंबर 26 तक का पोर्शन होगा. ठीक है, सर वो मतलब रेगुलर ही होगा ना, ऐसा प्रैक्टिस वाला नहीं होगा ना? एज इन द जर्नल ऑफ मतलब सब नेम वाइज और सब मिक्स ट्रांजैक्शन रहेगा? हाँ, मिक्स प्रैक्टिस वाला नहीं, मिक्स पूरा. एक्चुअल सम जो आप करते हो ना स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से, एक पर्टिकुलर बिजनेस का ट्रांजैक्शन, वैसा ही समझा है. ठीक है, तो डिफिकल्टी लेवल थोड़ा हाई होगा. ठीक है, मोर देन स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक. अपने शीट लेवल से भी थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, वही टाइप का हो सकता है. बट ये सम्स अगर आपने सब देख लिए 26 तक, तो यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट दैट. तो सर मतलब एक ही रहेगा ना इन द जर्नल एंट्रीज और सपोज अजय है तो वो ही रहेगा ना? हाँ, दूसरा no कोई problem. नहीं रहेगा ना? तो वो पूरा 30 मार्क्स का रहेगा? नहीं, 2 प्रॉब्लम, 15 मार्क्स, 2 डिफरेंट प्रॉब्लम्स. इन द बुक्स ऑफ अजय, इन द बुक्स ऑफ राम, ऐसा 2 बिजनेस का एंट्रीज होगा, 15 मार्क्स. ओके, 1 hour 15 मार्क्स विथ नरेशन, विथ कैलकुलेशन जर्नल के बीच में दिखाना है तो दिखा सकते हो, बट आई विल एडवाइज अभी हैबिट डाल दो पीछे दिखाने का.
आफ्टर द जर्नल कैलकुलेशन दिखाने सर का नहीं फायदा दिखाया तो भी चलेगा ना? नहीं दिखाया तो भी चलेगा, नहीं दिखाया तो भी चलेगा, बट ओरली मत करना मेरे भाई, मिस्टेक हो सकता है, ठीक है? So Tuesday test है, यहाँ तक का portion है. Still, if you have any doubts, you can wait. Otherwise, you can. Sir, Tuesday we have French class, 7:30 to 8:30. Morning. Tuesday. Evening. Evening. Tuesday evening you have. Okay. I'll adjust the time. Wednesday I'll keep. Otherwise, Wednesday I'll keep 6 o'clock. सर वेडनेसडे को राजीव सर का है. What time it is? ये तो 4 to 6. 4 to 6 है ना? नहीं, that Somaya batch is talking about. So Wednesday evening 6:30 to 7:30 you don't have anything, right? Nothing is there, na? Wednesday evening 6:30 to 7:30. So Wednesday evening we can keep 6:30 to 7:30. ठीक है? Wednesday evening 6:30 to 7:30. डाल देता हूँ मैं ग्रुप में. Wednesday evening 6:30 to 7:30. You still have any doubts? You can wait. Otherwise, you can leave. Tata, bye bye. Thank you, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye. Thank Take you, care. sir. Bye.